جی بالکل اس وقت I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. सारी पाकिस्तानी अवाम यही पहनती है। जो चीज़ें ब्रांड से महंगी मिलती है इधर सस्ती मिलती हैं, बहुत मुनासिब रेट में मिलती हैं, तभी हर बंदा आके लंडा लेता है। हमने तो सारी ज़िंदगी यही पहना है। जो इधर चलते हैं और चीज़ें हैं वो तो हम फोल्ड ही नहीं कर सकते। अगर ये हराम है तो हर चीज़ ही हराम है पाकिस्तान में। तो फिर मौलाना साहब सबको दें कपड़े, फ्री कर दें। ये चीज़ें जो नए सूट आते हैं फ्री कर दें, हम लेते हैं आधे आधे रेट पे करा दें तो हम खरीदते हैं। मौलाना साहब से ना हलवा किसी ने छीन ली है, इसलिए उन्होंने ये फतवा दी है। उनको मेरे हिसाब से हलवे की कमी है उनके पास। जो दीन की अच्छी बातें हैं ना वो नहीं बताते। ये कपड़ा हराम है जी, ये कैसे हो सकता है? ये सस्ती चीज़ें हम इधर सेल करते हैं, अवाम अपना बदन टापती है, इसमें हराम नहीं है। हम नहीं समझते। हम 50 साल से मैं यही पहन रहा हूँ। नया तो हमें पसंद ही नहीं है। पाकिस्तानी कपड़ा किसी काम का नहीं होता, सब 2 नंबर चीजें होती है। ये अगर हम वाश करके पहनते हैं, कलमा पढ़ के इंसान मुसलमान होता है तो कलमा पढ़ के ये धोया जाए तो ये हराम है, साफ हो जाता है सब कुछ इससे। बाकी उनका अपना दिमाग है, उनसे किसी ने हलवा छीन ली है। इंसान इतने वो चीज़ नहीं है कुछ भी, लेकिन जब एक कलमा इंसान याद कर लेता है ना, पढ़ लेता है, पढ़ के अपने जिस्म पे फूंकता से अल्लाह पाक के हुक्म से इंशाअल्लाह मदद से ये वजूद पाक हो जाता है। जी उलमा कराम, देखो जी मैं इतना पढ़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन बात ऐसी है कि एक कलमे से हमारा ईमान है, एक कलमे से सारा मुल्क खड़े थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदका मान देना तो भी कुर्बान जावा सोने दे। तो ऐसा तो इससे अपना ईमान भी है तो अपना अकीदा भी है। कपड़ा खरीदने के लिए आए हैं लंडे से, तो हमारे आलम दीन तो कहते हैं कि लंडे का कपड़ा पहनना हराम है, ये पहनना नहीं चाहिए। तो आप क्या कहते हैं?
हराम तो और भी बहुत चीज़ें हैं जिसमें अमल नहीं करते, तो इसमें कौन सी गरीबों के लिए हर चीज़ हराम होती है, बड़े लोगों के लिए हलाल होती है, तो ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। बात वो करे जो समझ में आती है। मैं तो उलमा किराम से ये कहता हूँ कि कम से कम थोड़ी लचक रखा करे हम सबके लिए कि ये गरीब आदमी का लंडा है, यहाँ अगर इतने पैसे हो तो कोई यहाँ क्या लेने आया बताए मुझे। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि उलमा किराम को चाहिए कि थोड़ा सा कम से कम इतना ख्याल रखें कि ये गरीबों के लिए भी है। यहाँ क्या ऐसा मसला है जिसपे आप पाबंदी लगा रहे हैं, या इसमें कोई प्रॉब्लम्स क्या है हमें बताएं तो सही। ये जो रोटी कमाने के लिए लोग आए हुए हैं, क्या बात है, इनके बच्चे नहीं है क्या, इनको कोई देने वाला है अमदाद? अगर तो इनको कोई देता है तो फिर तो बात समझ में आती है। तो यही समझते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे अमल दरामद करे। अगर थोड़ा सा ये चीजें कम करते हैं आवाम के लिए फायदा है, मुल्क तरक्की करता है। कौमें तभी खुशहाल होती हैं जब आवाम खुशहाल होगी, जब आवाम खुशहाल नहीं तो कौम ने फिर मुल्क क्या तरक्की करनी है। कलमा पढ़ के साफ हो जाता है। ये जो मौलाना साहब कह रहे हैं ना, गलत कह रहे हैं। अभी 4 दिन पहले मेरे पास इमाम मस्जिद आए हैं, वो यहाँ से खरीदारी कर कर गए हैं, कहते हैं ये मैं माड़ा हूँ, ये है वो है, ऐसी बातें करके मुझसे कई चीजें लेकर गए हैं। कि ये किसके लिए लेना, मदरसे के बच्चे के लिए, कैसे हराम हो सकती है चीजें। ये बात सोच रहा हूँ कि उन्होंने ये बात कही क्यों है, ये उनको खुद सोचना चाहिए अपने गिलेमाद में देखकर कि ये चीजें हराम नहीं होती, ये जायज हैं। जब वाश हो गई, कलमा पढ़ गए या जैसे भी सरफ में ये साफ हो जाती है, इनमें कोई ऐसी नापाकी नहीं होती। ये मैं 50 साल से यही यूज कर रहा हूँ, मुझसे पहले मेरे वालिदैन भी ये चीजें यूज करते रहे हैं। बाकी मौलाना साहब का दिमाग फिर गया है। जितनी महंगाई चल रही है ये आम बंदे के बस में भी नहीं है लंडा। जो आप ये कह रहे हैं हराम है, लेकिन ये आम बंदे के बस में भी नहीं है। आप देखें लंडे की चीज़ है, लेकिन ये इसका वो चेक कर लें कि रेट कितना ज़्यादा है इसका, तो आम शॉप पे आप जाके देखें, आम बंदे के बस से बाहर है ये चीज़ें सारी। सर कौन करेगा आकर? मुझे बताएं कि पिछले 30-30, 35-35 साल से हुकूमतें कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं ये? लंडा अगर बंद हो गया तो गरीब लोगों का जीना तो हराम हो जाएगा। बाकी बातों पे फोकस नहीं दे रहे सर। बाकी बहुत सारी बातें ऐसी है जो उलमा किराम कह रहे हैं कि हराम है, उस पे क्यों पाबंदी नहीं लगाया जा रहा है, सिर्फ लंडे पे पाबंदी लगाया जा रहा है। सर ये तो गरीब लोगों का बहुत भला हो रहा है, सस्ते चीजें आके ले रहे हैं हमारे से। अगर बंद करा दिया तो मैं कहता हूँ ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, मगर बाकी जो चीजें हैं उस पर तवज्जो देना चाहिए। और क्या चीजें आपका समझो, और बहुत सारा रिश्वत चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे ये जो नाजायज काम हो रहे हैं, उस पे क्यों तो जो है ना वो नहीं हो रहा है सर। वो तो एक तजारत है सर, ये पाकिस्तान का क्या हो गया, ये तो LDA वाला नहीं, पाकिस्तान में नाजायज जो है ना वो क्या कहता है, ये एक तजारत हो रहा है। LDA वाला हो गया या कोई भी महकमा हो गया, ये नाजायज एक तजारत है जो हम से करवाई जा रहा है। जहाँ भी सिस्टम लगा हुआ है ना, ये एक नाजायज सिस्टम चल रहा है सर। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो बंद करवाने चाहिए, मगर उस पे तो हुकूमत तवज्जो नहीं दे रहे। सिर्फ गरीब लोगों के पीछे सोटी उठाया हुआ कि भाई चलो बंद करो, इसको बंद करो। सिर्फ रेडी के पीछे पड़ा हुआ है, या किसी दाने वाले के पीछे पड़ा हुआ है, या किसी शूज वाले या कोई ऐसे नॉर्मल वाली चीजों के पीछे पड़ा हुआ है। बाकी बड़े चीजों को तो हाथ नहीं डाला जा रहा है सर। लेने की आई मजबूर होके, मजबूर है की करिए, माड़ा बंदा किधे जावे। महंगाई ज्यादा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं नवाज शरीफ दी बहन हां, बहुत पसंद है। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਬਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ। ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ ਕੋਟੀ ਖਰੀਦਣੀ, ਬੰਦੇ ਆਵਣਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ। आप कहते हैं आप नवाज शरीफ की बहन है, तो नवाज शरीफ तो लंदन में बैठा है, अय्याशियां कर रहा है, तो आप यहाँ लंडे की जूतियां खरीद। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਲੰਦਨ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ। बिलावल भुट्टो इमरान खान अच्छे नहीं है, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਦਮ ਦਮ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ करे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस से जगह देवे। रेडी शर्टें खरीदी हैं अपने बच्चों के लिए और बीवी के लिए। सस्ता माल इधर से मिलता है, गरीब आदमी की पहुंच नहीं है इतनी महंगाई में। आप मजदूरी करते हैं नौकरी करते मजदूरी करता हूँ, गारमेंट का काम करता हूँ। तो रोजाना की मजदूरी कितना कमा लेते? जी 900 रुपया दिहाड़ी है। अच्छा हजूर, हमारे उलमा कराम कहते हैं लंडे का कपड़ा पहनना भी हराम है, उसको धो के पहनना भी हराम है, जूते भी पहनना हराम है, तो फिर आप जो 900 रुपए की दिहाड़ी कमाते हैं, आप क्या समझते हैं उलमा कराम जो कह रहे हैं वो सही है? मजबूरी में जायज़ है, मांगने तो कोई नहीं देता, इसलिए अपनी मजबूरी में ले रहे हैं। हम सब कौन से शौक से पह रहे हैं, अल्लाह ताला तो खुद जानता है नीयत हमारी क्या है। ये मजबूरी आपकी हुकूमत खत्म कर सकते हैं, महंगाई क्यों नहीं कम करती, क्यों नहीं आपने आवाज बुलंद कर? आवाज कैसे बुलंद करें, हुकूमत को भी पता है कि गरीब आदमी क्या करेगा। हम तो जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारी तवज्जो दें हमारे पर, लेकिन कोई नहीं दे रहा सर। ये सब ब्रांडेड है, वूल के अच्छे कोट है। दिन में कितना बेच देते हैं, कितना कमा लेते हैं? इसमें से ये 1000-1500 कमा लेते हैं बच्चे। अच्छा, आप रोजाना 1000-1500 कमाते हैं, जब उलमा कराम कहते हैं ये पहनना, लंडे का कपड़ा पहनना हराम है, ये नहीं पहनना चाहिए, गुनाह है, गुनाह कबीरा है, इसको बंद करना चाहिए, तो फिर उलमा कराम की माननी चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, ये सब झूठ है, ये उलमाए कराम खुद लेके जाते हैं यहाँ से। आज सुबह लेके गए हमसे 2 कोट, ये हमारे सामने तो किसी ने नहीं कहा कि ये हराम है। अगर उलमा कराम ने फतवा दिया है, इसका मतलब हुकूमत से अगर अप्रूव करवा लेते हैं तो फिर क्या बनेगा?
कुछ भी नहीं बनना फिर हमारा। हाँ जी, हमने फिर कोई और लगा लेना है, फ्रूट लगा लेना है, कुछ और लगा लेना है, पर ये हराम नहीं है। ये कपड़ा पहनना हराम है और चीजें आप नहीं समझते, दूसरी चीजें रिश्वत लेना, झूठ बोलना, ये हराम नहीं? वो समझते आप जो अंग्रेजों की किताबें आती हैं इधर, वो लोग पढ़ते हैं, वो हराम नहीं है। अल्लाह ने एक ही किताब नाज़िल की है, कुरान पाक, सिर्फ वो पढ़नी है। वो किताबें पढ़ते आके अंग्रेजों की, हर चीज़ यार स्कूलों में कॉपी करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, वो हराम नहीं है। हमारे दीन में तो नहीं, हमारी कौमी जुबान उर्दू है ना, तो उर्दू ही पढ़नी है हमें, तो वो सब पढ़ते हैं, वो भी समझो, लंडा ही समझो उसको भी। भाईजान, आप यहाँ लंडे से कपड़ा खरीदने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, लंडे बाजार में उलमा कराम कहते हैं कपड़ा खरीदना, जूते खरीदना हराम है, इसको नहीं पहनना चाहिए, गुनाह कबीरा है, तो आप क्या कहते हैं? और फिलहाल सही पूछे तो हमने अभी तक कहीं से नहीं सुना। अगर हो भी तो गरीब आदमी कहाँ से परचेज करेगा? उसको तो सर्दी के बच्चे के अपने के लिए जरूरत चाहिए ना। ये मैं नहीं समझता कि ये हराम होना नहीं चाहिए। तो कपड़े पहनने हराम है और चीजें हमारे मुल्क में जो हो रही है वो हराम नहीं? तो हराम चीज़ तो वैसे भी मना है। हराम तो कोई भी चीज़ हो वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए ना। अब एक इंसान की मजबूरी, नंगा तो नहीं ना फिर सकता। गरीब आदमी क्या करेगा? वो कहीं ना कहीं से तो वो अपने बच्चों के लिए खरीदेगा ही ना। अब एक चीज़ है, ये खान भाई दे रहे कितने का? ये 500 का है। ये दुकान में जाएंगे तो 3500 रुपए का कम से कम मिलेगा। गरीब आदमी कहाँ से लेगा? नहीं लेगा ना, उसकी मजबूरी है ये खरीदना। आप क्या कहते हैं भाई? सर ये 800-900 रुपये हमारे पर डे मिलता है हमें। 3500 का हम बाहर से लेंगे दुकान से तो नहीं ना, घर कैसे खाएंगे? फिर ये तो कपड़ा है, ये कहते हैं जो हराम है पहनने नहीं चाहिए, इसको सस्ता किस तरह किया जाए? नए कपड़े को सच जो 3500 को उसको 500 पे ला सकते? उलमा कराम को चाहिए कि बताएं उनको, गवर्नमेंट को, कि गरीब आदमी का भी कुछ सोचें। आप समझते हैं उलमा कराम बिल्कुल इजी है, उनके पास पैसा फंडिंग आ जाती है, इसलिए वो फतवे देते हैं? उनके पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, ज़ाहिर है वो नए पहन सकते, ब्रांडेड पहन सकते हैं, हम कैसे ये पहन? हमें तो गरीब लोग हैं, हमारी 800 रुपये दिहाड़ी, हम यही पहनेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने लंडा बाजार के शहरियों की गुफ्तगू भी सुनी, दुकानदारों को भी गुफ्तगू सुनी। उलमाए कराम कहते हैं लंडा बाजार का कपड़ा पहनना हराम है, लेकिन गरीब के लिए जो 800-900 रोजाना की उजरत पर कमाता है वो क्या करे? वो कहाँ से कपड़ा खरीदे, नया कपड़ा कहाँ से लेके आए? अगर ये हराम है तो दूसरी चीज़ें भी हराम है, जिस आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी होगी। अगर ये हराम ही ख़त्म करना है तो फिर ऊपर के लेवल से हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए ताकि आम शहरी भी नए कपड़े खरीद सके, अपने बच्चों को वो नए कपड़े पहना सके।